Okay, so today, what we'll be doing is that we will be discussing on the money personality. Now, this money personality, trust me, even like I was in the financial industry for so many years, but to get to know about it more deeply and understand it was in the last few years. I would say in the last 2 to 3 years, where I understood that money personality impacts your decisions about money to a greater extent. So that is what we are going to discuss today. So let me share the screen with you. Can you see the screen? हाँ दिख रही है. दिख रही है ना? ओके. Yes. मैं हिंदी में बात करूं या इंग्लिश में बात करूं? आपको क्या कन्वीनियंट होगा? मैं दोनों में बात कर सकती हूँ. हिंदी. हिंदी ठीक है, मैं हिंदी में बात करती हूँ. दैट्स फाइन. नहीं तो लक्ष्मी, लक्ष्मी. Not 100%. You ओके, please आई डू mix both इंग्लिश. and talk. ठीक है, मैं इंग्लिश में बात करती हूँ. ओके. Yes, तो English is व्हाटएवर. better. हाँ ठीक है. सो व्हाटएवर लक्ष्मी, आपको जो भी लगता है कि यू वांट टू नो इट, I'll do a English so that we can understand. So moment I enlarge it now, wait a minute, like, okay, so I'll just enlarge one and okay. Now let's understand how personality plays a very important role, and let me give you a very small example. There are two personalities, one who's very extrovert and one who's very introvert. Okay, this is an introvert person, this is an extrovert person. Now, what will an introvert person will do? Will avoid meeting large groups of people, will avoid conversation, will avoid, any event where they have to talk a lot. Okay, an introvert person will always do that. Why? Because the personality of the person is introvert. Similarly, an extrovert person, what it will do? It will go out, this will, so typically all the sales people are extrovert people. Okay. They will interact, वो लोग सबसे मिलेंगे, सबके साथ बात करेंगे, opportunities they can seek way faster. So based on a personality, आपको दिख रहा है कि हम कैसे life का decisions लेते हैं. Now introvert person will take a software job. वो क्या कौन सा job लेगा? Software का job लेगा, banking का job लेगा, जहां पे वो एक जगह बैठ के काम कर सकता है. Agree or not? Introvert person. Extrovert person क्या करेगा? Sales लेगा, marketing लेगा, branding लेगा. So can you see हमारा personality हमारे life decisions को इतना impact करता है. Now if और एक important चीज है ना, even marriage में देखो personality यदि बहुत ही 360 डिग्री है तो वो मैरिज बहुत दिन लास्ट भी नहीं होता है. यदि एक बंदा पार्टी करता है और एक स्पाउस पार्टी एनिमल है और दूसरा स्पाउस मंदिर जाने का प्लान करता है. एक्चुअली माय कजिन में ऐसा आई हैव सीन वन ऑफ माय कजिन, शी हैज गॉन थ्रू अ डिवोर्स बिकॉज द हस्बैंड इज वेरी स्पिरिचुअल. उसको सिर्फ मंदिर जाना है, उसको रेस्टोरेंट में नहीं खाना है, उसको मूवी नहीं जाना है. एंड शी इज समवन हु वांट्स टू गो आउट एंड एंजॉय लाइफ. आफ्टर 10 years उनका ब्रेकअप हुआ है, मीन्स डिवोर्स हुआ है उनका मैरिज का. सो आप देखो पर्सनालिटी हमारे लाइफ को कैसे गवर्न करती है और कैसे अपने को डिसीजंस मेकिंग में इन्वॉल्व होता है. ठीक है, अभी हम क्या समझेंगे ना, विथ मनी व्हाट इज अ पर्सनालिटी. We have never understood what is a personality with money, because our personality with money will make us spend, save, splurge, run away from money, or go for all the opportunities that we have in life. So what does a money personality do? It will dictate how much you spend, how much you save, how much you earn. Your money personality also decides how much you're going to earn in life. Yeah, just like how one diet doesn't work for all, neither is one way of saving. So your money personality is like a body type. It is very, very specific and very unique for you. Correct? So now let's explore. Now what I want you to do is that while you're writing it down, okay, now when I'm talking about this personality, you will have to write down which personality are you. Okay, and then we will go through these questions which you're going to write it in your worksheet, in your notebook. Yeah, so that you can improve yourself and come to a balanced personality. So let's start with the first money personality, money avoider. Who's a money avoider? सिद्धांत, आपका नाम क्या? सॉरी. सुनीता मुंदड़ा.
ओके सुनीता जी, आपको जब भी है ना आपको लग रहा है कि मुझे इंग्लिश कम करना है तो आप प्लीज बता दीजिए, आई स्विच टू हिंदी वो। Yes, yes. ठीक है। ओके सो सुनीता जी, पहला पर्सनालिटी है मनी अवॉइडर। व्हाट इज अ मनी अवॉइडर? ये बंदा वो है जिसका बिलीफ लाइफ में है कि बहुत पैसा आ जाएगा ना, हमारा हम्म, पीस चला जाएगा, हमारा हैप्पीनेस चला जाएगा। और ये कहीं ना मनी को इविल देखता है। मीन्स इविल मनी क्या है कि मनी है ना सब सब दुख की जड़ है। मनी के कारण है ना लोग अशांति में रहते हैं, मनी के कारण लोग खुश नहीं रहते। सो ये बंदा है ना मनी से भागेगा ना, जिसका ये पर्सनालिटी है। पता है उसके लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होने वाला है? वो लाइफ का सारा अपॉर्चुनिटीज जो उसको पैसा दे सकता है, जो उसको ग्रोथ दे सकता है, वो उससे भागते रहेगा। करेक्ट। जैसे हमने बोला इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सन, एग्जैक्टली। सो बट हमारे सबके अंदर क्या है? पैसा कमाना है कि नहीं? सबके अंदर वी ऑल वांट टू अर्न मनी। सो कैन यू yes. सी देयर आर टू कॉन्फ्लिक्ट। हमारे अंदर दो कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक कॉन्फ्लिक्ट है हमको पैसे कमाने हैं, बट हमारा पर्सनालिटी क्या है? इंट्रोवर्ट। हम एक्सट्रोवर्ट जैसा काम कैसे कर सकते हैं फिर? ओके सो इनकेस हमारा ये बिलीफ है कि मनी हमारा सब सुख चैन ले लेगा, तो हम कभी ज्यादा पैसा हमारे लाइफ में आने ही वाला नहीं है। इसका सबसे बड़ा फ्लिप पॉइंट है उसका। ठीक है। और हमको जैसे मैंने बहुत जन को देखा है, अरे अरे नहीं नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो खुशी चाहिए, मुझे पीस चाहिए। पैसा ऑक्सीजन की तरह है। हम बोलते हैं क्या हमको सांस नहीं लेना है? डू वी से हमको ब्रीदिंग नहीं करना है? नहीं. मनी एक एनर्जी है। ठीक है। हम सांस तो मनी भी एक एनर्जी है ना। हम बोलते हैं नहीं हमको ज्यादा पानी नहीं पीना है। सो हम मनी को एक नेगेटिव एसोसिएशन हमने इसलिए दिया है बिकॉज हमारा एक रीजन है जो हम मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशंस में मैं कवर करूंगी। सो पहले आपको जाना है आपका ये पर्सनालिटी है कि नहीं। ठीक है। सेकंड इज एन मनी वर्शिपर। आपके फैमिली में आप रिलेट कर सकते हो, कोई ना कोई ये पर्सनालिटी पे होगा। पहला पर्सनालिटी भी होगा, सेकंड पर्सनालिटी भी होगा। मनी वर्शिपर वो बंदा है जिसको लगता है कि पैसे आ जाएंगे ना, लाइफ में सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। मैं आपको ये एग्जाम्पल पूछती हूँ कि आपने आज आपके सिक्योरिटी गार्ड को 5 करोड़ दिया, वो अमीर बन जाएगा? थोड़े दिन के लिए बनेगा। ठीक है। बट क्या है उसके पास वो नॉलेज नहीं है, उसके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है कि जब पैसा आता है तो उसको कैसे मैनेज करने का। करेक्ट। सो सो पैसा पैसे का प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व कर सकता है। सॉल्व हमारा प्रॉब्लम कौन कर सकता है? मनी माइंडसेट। हमारा पैसे के साथ जो रिश्ता है यदि वो अच्छा है ना, तो पैसा जब भी आएगा हम उसके साथ अच्छा यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो सेकंड पर्सनालिटी मनी वर्शिपर, वो पूरा लाइफ टाइम फैमिली के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कुछ स्पिरिचुअलिटी नहीं, सिर्फ भाग रहा है पैसे कमाने पैसे कमाने पैसे कमाने। और ये पूरा भाग दौड़ में ना पूरा स्ट्रेस का लाइफ जीता है। उसको पता ही नहीं है। सी हम लोग है ना, हम एक्चुअली मशीन की तरह हैं। आप सुबह उठ के आप क्या करते हो? आपका ब्रश ही उठाते हैं ना, इतना सारा ब्रश है, पर ऑटोमेटिकली आपका हाथ कहाँ जाता है? आपके ब्रश में। आपने आज तक किसी गलत से किसी और का ब्रश लिया नहीं। और जब भी आप अपना ब्रश मुंह में डालते हो आपको पता ही आप ही का ब्रश है, बिकॉज उसका फीलिंग अलग है। सो हम ना वी आर क्रिएचर्स ऑफ हैबिट्स। सो मनी वर्शिपर वो बंदा है जो सिर्फ भागता रहता है कि पैसे आ जाएंगे ना मेरे लाइफ में सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मनी स्टेटस, ये वो लोग हैं जब तक उनके पास मर्सिडीज नहीं है, या फिर वो महंगा साड़ी नहीं है, या फिर वो महंगा शूज नहीं है, या फिर महंगा बैग नहीं है, उनको लगता है कि लोग उनको इज्जत नहीं देने वाले हैं। बिकॉज जो आइटम्स है लाइफ में हमारे, वो हमारा सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ वर्थ डिसाइड करता है। तो ऐसे लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि जब उनके पास ये सब सामान नहीं है, नो डाउट वो कितने नॉलेजेबल हो, कितने अचीवर्स हो, उनके अंदर खोखलापन रहता है। बिकॉज उन्होंने क्या इक्वेट किया, मेरा स्टेटस इज इक्वल टू मेरे पास क्या सामान है। मर्सिडीज है कि नहीं, बीएमडब्ल्यू है कि नहीं, साड़ी है कि नहीं, अंदर का सेल्फ वर्थ इज इक्वल टू बैंक बैलेंस। जैसे बहुत सारी लेडीज मेरे को बोलती है
कि मैं है ना अचीवर नहीं हूँ, मैं फेलियर हूँ, तो मैं पूछती हूँ क्यों? नहीं नहीं, मैं पैसे नहीं कमाती हूँ। घर संभालना कोई मामूली बात है क्या? वो फीलिंग कहाँ से आया? बिकॉज हमने देखा है कि जिसके पास पैसा है वो ज्यादा पावरफुल होता है। हमने हमारे माइंड में क्या इक्वेशन बनाया, मनी इज पावर, जिसके पास मनी नहीं हो वो पावरफुल नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारा सेल्फ वर्थ बहुत लो होता है। ठीक है। नाउ at the end you will have to tell me आपका क्या पर्सनालिटी है, because then I can help you out with it. Then the fourth है कि मनी इन्वेस्टर। नाउ यहाँ पे बैलेंस अप्रोच होना चाहिए कि लाइफ को लीड करो, सेव भी करो, इन्वेस्ट भी करो। और ये फोर्थ जो कैटेगरी है ना, ये काफी नॉलेजेबल कैटेगरी है, उनको पता है लाइफ में क्या है क्या नहीं है, क्या करने का है। बट ओनली थिंग इज दैट बैलेंस कब होता है कोई, व्हेन दे नो हाउ टू एंजॉय लाइफ, they are not so worried about money, they're not living under constant stress of money. Actually na, the money in the bank account is never related to your state of happiness, because my helper, she has very less bank account but she is very happy. I've seen the most rich guy being very unhappy and very stressful. Yeah. So money investor is someone who is saving money, investing money, is taking all the calls and is financially aware about instruments. Money impulsive spender, most of the women who come to me for my program, they say that मेरे को ना खर्चा करने का बहुत ही हैबिट है, आई एम नॉट एबल टू सेव मनी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इट्स नॉट दैट यू वांट टू स्पेंड मनी, द प्रॉब्लम इज दैट आपको पता नहीं कहाँ सेव करना है। जब आपको पता नहीं होता कहाँ सेव करना है तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है, तो आप यूज करते रहते हो। जैसे टाइम देखो, यदि आपके दिन में बहुत सारा काम है तो आपका दिन कैसे जाता है, फटाफट 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 जाता है। वैसा ही यदि आपको पता है ये पैसा यहाँ पे यूज करना है तो आप उसको कभी वेस्ट नहीं करोगे, बट आपको जब पता नहीं होता उसको कहाँ पे यूज करना है, वो पैसा वेस्ट होता है। या सो दीज आर पीपल, कोई भी नया ऑफर आएगा वो खरीद लेंगे। उनके अंदर ना इम्पल्सिव स्पेंडिंग है। अरे नायका में ऑफर आया, चलो ले लेते हैं, अरे आज यहाँ पे सेल है, वो खरीद लेते हैं। ओके, दे आर इम्पल्सिव स्पेंडर। सिक्स्थ, मनी कंपल्सिव सेवर। These are those people, जैसे अभी I have seen few uncle and aunties in my family जो बस 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 में जाएंगे जबकि उनके पास बहुत पैसा है, they can afford a taxi, they'll go by bus, they will not enjoy life, they will not buy that thing what they deserve, they are saving because they are under constant fear that कल मेरे पास ज्यादा नहीं होने वाला है। That fear, see, when these are all money blocks, and these money blocks doesn't allow you to have abundance. कुछ लोग पैसे के साथ इतना सक्सेसफुल क्यों रहते हैं? बिकॉज उनका लिमिटेशंस विद मनी नहीं होता है। जिसका लिमिटेशंस विद मनी ज्यादा होता है, मनी उनके पास आता नहीं है, बिकॉज मनी एक एनर्जी है। ओके, जैसा अभी सुनीता जी और मैं, यदि हम लोग अच्छा दोस्त है तो हमारा क्या होगा, हमारा रिश्ता और अच्छा बड़ा होगा, हम और ज्यादा एक दूसरे के साथ मिलेंगे। देखिए मनी के साथ हमारा रिश्ता ऐसा धकेलने वाला है, मनी कहाँ आने वाला है, बिकॉज मनी भी एक एनर्जी है ना अपने लिए। या सो कंपल्सिव सेवर हर जगह ना बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हम लोग है ना एसी में नहीं जाएंगे, हम लोग थर्ड एसी, हम लोग सेकंड क्लास में जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, हम लोग प्लेन से नहीं जाते, हम लोग ट्रेन से जाएंगे। पैसा है उनके पास बट उनका माइंडसेट है कि मैं खर्चा करूंगा तो मेरे पास कल के लिए नहीं रहने वाला, एंड कांस्टेंट वो स्ट्रेस में रहते हैं। मनी मॉन्क वो होते हैं जिनको जो बेसिकली बोलते हैं अरे यार पैसा क्या मोह माया है, बट आप सुबह से लेके रात तक हर चीज में पैसा देना पड़ता है, दूध वाला से लेके सब्जी वाला से लेके, अंटिल एंड आप हिमालय में जाके बैठे, आप हिमालय में जाके बैठे हो तो आपको पैसे नहीं चाहिए। तो मैं लोगों को बोलती हूँ जब तक आपको वो स्टेज आप पहुंच जाते हो तो ठीक है। पैसा एक एनर्जी, हम लक्ष्मी माँ बोलते हैं उसको, बट हम उसको अपने घर पे सिर्फ एक ही दिन बुलाते हैं, वो दिवाली के दिन, बाकी सब दिन हम उनसे भागते हैं, लक्ष्मी से, लक्ष्मी जी से। ठीक है, एक तरफ तो हम बोलते हैं लक्ष्मी जी और दूसरा तरफ बोलते हैं क्या मोह माया ये सब, तो हम बोलते हैं लक्ष्मी जी मोह माया है क्या फिर?
सो एक एनर्जी है जिसको हमको रेस्पेक्ट देना है, लव देना है। ओके, सो ये सातों इसमें, और जो लोग मैंने देखा जो बहुत एनजीओ का काम करते हैं, जो बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में है, वो मॉन्क का उनका जो पूरा बिहेवियर टुवर्ड्स अ मॉन्क बिहेवियर, या सो ये 7 पर्सनालिटी है। अभी इसमें से आपको क्या लगता है कि आपका, ओके अब पहले हम ये करते हैं, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। सो इसमें से ना आपका कौन सा पर्सनालिटी आप लिखेगा, सो राइट डाउन योर पर्सनालिटी। सो लक्ष्मी एंड सुनीता जी, यू कैन डू दिस, राइट डाउन योर पर्सनालिटी। Meena, actually, I'm having two stages. So till I was working, and afterwards, Yeah. I'm into this one. Yeah, I will handle it after I'm done with this. So I'll just tell the questions you want to write down. Which is your personality? Write it down. Then write down the 3 positives of this personality. Write down the 3 negatives of this personality. And the 4th is, according to you, what action needs to be taken from your end to have a balanced personality. So you write it down. What I'll do, we will discuss it for a few minutes after. So once you're written, you just tell me, then I'll stop the recording and then we'll discuss it. Sunita ji, any question? ये question पे आपको? नहीं मैम, Okay, तो आप क्वेश्चन ही आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपने पूरे मनीष के इसमें से आप कौन से कैटेगरी में सोचते हो। परफेक्ट। तो आप पहला क्वेश्चन लिखेगा, फिर सेकंड का लिखेगा, फिर थर्ड का लिखेगा, और फोर्थ इज दैट, सी लाइफ में ना बैलेंस चाहिए, हर चीज में बैलेंस चाहिए। जैसे इंसान बहुत ज्यादा कुछ खाता है तो क्या होता है, वो चीज का इम्पैक्ट होता है, राइट। ठीक है। यदि हम बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं तो आंख का इम्पैक्ट होता है। लाइफ में कोई भी ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत कम भी अच्छा नहीं है, एक बैलेंस होना चाहिए। तो मनी के साथ भी हमारा सेम अप्रोच है। तो आप ये क्वेश्चन आंसर लिख दीजिएगा, फिर देन वी विल डिस्कस योर थिंग्स। Yes. So once you're done, you can just let me know and then we will be open to discussion. Let's take a screenshot of this. Done? Yeah. Yes, Meena. Okay, fine. सुनीता जी, आपका हो गया है क्या? जी। Okay, ठीक, perfect. So we will open this for discussion. Yeah. So
I'll just sum up. So we understood how the money personality actually helps us decide the kind of a money that we have in our bank accounts. Very important for you to know what your money personality is all about.